Hello dear students, my name is Lakshya Ahuja and I'm your EVS teacher for class 4th. So in class 4th EVS, we were studying chapter number 13, that is, should I eat chocolate or protect my teeth? We have already completed 3 parts of this chapter and this is the part 4 and the last part of this chapter. So we will be continuing the discussion about teeth, their types, their importance, etc. So let's start. Now, dentist uncle was in the school. We were having that discussion. Now different students were asking different questions to dentist uncle. Now who asked the question? Johar asked a question that my dadi's teeth are reddish, someone's teeth are yellowish while someone's teeth are blackish. Why? तो बच्चों ये हमारा आखिरी भाग है इस अध्याय का और हम दांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम क्या देख रहे थे कि डेंटिस्ट अंकल स्कूल में आए हुए थे और वो अलग अलग बच्चों के जो प्रश्न थे उन सब का जवाब दे रहे थे और दांतों के ध्यान रखने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो अब जौहर ने प्रश्न किया डेंटिस्ट अंकल से। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने ये पूछा कि मेरी दादी के दांत तो लाल लाल हैं, जबकि किसी के दांत मैंने देखा पीले होते हैं और किसी के दांत जो हैं वो थोड़े काले काले से होते हैं, ऐसा क्यों होता है? So what Dr. Uncle said? He said the teeth of people consuming gutka, betel leaf, tobacco become reddish, yellowish and get spoiled. There is foul smell from the mouth. They can also get dangerous diseases like cancer. So Dr. Uncle told Zohar and other students that there are different reasons for these different colors of teeth, that there are people who consume such substances like gutka, betel leaf or tobacco, their teeth actually becomes of different kind like yellowish or reddish or blackish, and these teeth actually are quite spoiled and they are having spoil or a kind of foul smell from their mouth, and they can be it can be dangerous and they can get various kind of diseases like cancer. तो बच्चों डॉक्टर अंकल ने बताया कि ये जो बात है कि अलग अलग लोगों के दांतों में कुछ के पीले हैं, कुछ के लाल दिख रहे हैं, कुछ के काले, तो ऐसा सब लोगों के दांतों में नहीं होता है। ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ों को खाते हैं जैसे गुटखा, पान या फिर तंबाकू, ऐसे लोगों के दांत जो हैं वो पीले, लाल या काले होने लगते हैं और ऐसे लोगों के दांत जो हैं वो वास्तव में काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और इनके मुंह से बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल भी आने लगती है और साथ के साथ ऐसे लोगों को कई तरीके की मुंह की बीमारियां भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। Now, see, Dr. Uncle also told that warnings are also written on pouches of gutka and tobacco. All of you should take a firm decision that in any circumstance we will not consume these things nor would let our friends eat. So here is a picture. You can see the tobacco, gutka, pan masala are injurious to health and life threatening. On their packets also this thing is written. तो बच्चों डॉक्टर अंकल ने बताया कि ये चीज़ें तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, ये सब हमारे लिए हानिकारक हैं। ये सब हमारे जो जीवन है उसको बीमारियों से ग्रसित कर सकती हैं और इस कारण से इस संबंध में चेतावनी लिखी जाती है इन सब के पैकेट्स पर। किसी भी गुटखे, किसी भी तंबाकू या पान मसाला के पैकेट पर, सिगरेट के पैकेट पर इस संबंध में चेतावनी लिखी जाती है और आप सभी को ये निर्णय लेना है। डॉक्टर अंकल ने भी ये चीज़ कही और मैं भी आप सभी को कह रही हूँ कि ऑल ऑफ यू हैव टू टेक दिस डिसीजन दैट यू विल नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इन योर लाइफ। तो डॉक्टर अंकल ने कहा कि आप सबको ये निर्णय ले लेना है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें आप किसी भी स्थिति में नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी इनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर सकती हैं। नाउ Gautam said, there's a saying, teeth became sore. Does that mean teeth
do have a use in tasting. So that was the question of Gautam, that do teeth can also taste? So गौतम ने कहा कि ये कहते हैं कि दांत खट्टे हो गए या दांत खट्टे हो जाना, तो क्या वास्तव में दांत भी टेस्ट कर सकते हैं, दांत भी स्वाद का पता कर सकते हैं? What Dr. Uncle said, he said no, most of the taste buds are located on our tongue and some are on the palate of the mouth. Those who do not have teeth टू आर एबल टू टेस्ट एवरीथिंग। तो डॉक्टर अंकल ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है गौतम, और सभी बच्चों को भी समझाया कि हमारी जो टेस्ट बर्ड होती हैं यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं वो हमारी जीभ पर होती हैं और थोड़ी बहुत हमारे जो तालू है वहाँ पर होती हैं, और इनमें से कोई भी हमारे टीथ पर नहीं होती हैं। और इसी कारण से ऐसे लोग जिनके दांत नहीं हैं, जिनके टीथ बिल्कुल ख़राब हो गए या ओल्ड एज में टीथ जब वापस गिरने लगते हैं, तो किसी के अगर दांत नहीं है तो ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति भी स्वाद को महसूस कर सकते हैं, वो भी खाने का स्वाद आसानी से ले पाते हैं। नाउ you have to do one activity. What you have to do here, let's see. Eat the items listed below and check at what places in the tongue do you feel the taste. You have to take some items. I'm going to tell you one by one. You have to keep them in your mouth. You have to taste that particular item. Then every time you have to rinse your mouth after eating so that you have no problem in identifying the next taste. तो बच्चों अब छोटी सी गतिविधि करनी है। फिर से क्या करना है आपको कि कुछ चीज़ें जो आपके घर पर आसानी से मिल जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो चीज़ें आपको एक एक करके लेनी है, थोड़ा सा अपने मुंह में रखना है, जीभ पर रखना है, और फिर उस चीज़ का टेस्ट जब आप लेते हैं तो आपको महसूस करना है कि टेस्ट मुंह में या जीभ में किस जगह पर महसूस हो रहा है। और ऐसा करने के लिए हर बार आपने एक चीज़ मुंह में डाली, उसका टेस्ट किया, फिर आपको कुल्ला करना है ताकि उस चीज़ का टेस्ट मुंह में ना रह जाए, और उसके बाद ही अगली चीज़ को मुंह में डालना है। सो व्हाट थिंग्स यू हैव टू टेक? सो यू हैव टू सिंपली टेक शुगर, सॉल्ट, लाइम एंड बिटर गॉर्ड। तो आपको चीनी लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, अलग अलग ही रखना है, मिक्स नहीं करना है इनको। सो चीनी लेनी है, नमक रखना है, थोड़ा सा आपको नींबू का रस या नींबू रखना है, उसके बाद आपको एक करेला भी रखना है, करेले का छोटा सा टुकड़ा रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल keep the sugar in your mouth. So you have to take some sugar and keep it in the mouth and try to taste it, that which part of mouth is actually tasting the sugar. Similarly, after tasting the sugar, you have to rinse your mouth, then you have to keep salt in your mouth and then try to identify that which part is actually tasting the salt, and similarly next two things also you have to taste. तो बच्चों ये चारों में से आपको एक एक करके मुंह में रखनी है इन चीज़ों को, और ये कोशिश करनी है पता लगाने की जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद का एहसास आपको हो रहा है। सो व्हाट यू विल फाउंड दिस थिंग, दैट वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग. आउट ऑफ देम हियर यू कैन सी द रेड वन हेयर रिप्रेजेंट स्वीट. तो हमारे जो मीठे के लिए स्वाद कलिकाएं हैं, मीठे स्वाद का एहसास हमें जीभ के अगले हिस्से से होता है। तो जीभ का जो सामने वाला हिस्सा है वो हमें मीठे स्वाद का एहसास कराता है. देन सॉल्टी यानी नमक का जो टेस्ट है वो हमें कहाँ से होता है? तो जो साइड वाला हिस्सा है जीभ का, आगे की तरफ का साइड वाला हिस्सा जो है वहाँ से आपको सॉल्ट का या नमक के टेस्ट का एहसास होता है. देन सॉर यानी खट्टा. तो जीभ का अंदर वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ से इस पूरे हिस्से से आपको क्या पता चलता है? खट्टे स्वाद का पता चलता है. एंड द लास्ट वन इज बिटर टेस्ट यानी कड़वा सा स्वाद. वो कड़वा स्वाद आपको जीभ के पिछले हिस्से पर एहसास होता है या पता चलता है. सो दीज आर द प्लेसेस ऑफ दीज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट ऑन योर टंग. सो यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स. आपके
जो जीभ है उस पर अलग अलग तरीके की स्वाद कलिकाएं अलग अलग जगहों पर है और उनके कारण ही हम स्वाद को महसूस कर पाते हैं. नाउ व्हाट वी लर्नड इन दिस चैप्टर, वी लर्न डिफरेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट थिंग, द टीथ विच इरप्ट इन चाइल्डहुड आर कॉल्ड मिल्क टीथ. यस, वी लर्न दैट थिंग कि जो दांत आपके बचपन में आते हैं, आपके जन्म के कुछ समय बाद यानी 6 से 12 महीने में आना शुरू होते हैं और लगभग 3 साल तक पूरे आ जाते हैं, उनको हम दूध के दांत कहते हैं. दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ. द सेकेंड थिंग, permanent teeth appear at the age of 10 to 12 years. तो जो आपके परमानेंट टीथ हैं या स्थायी दांत हैं वो लगभग 10-12 साल की एज तक या आप 10-12 साल के जब होते हैं तब तक आ जाते हैं. Then the third thing, in our mouth there are a total of 32 different types of teeth which have different functions. Yes, we learned that there are total 32 teeth and these 32 teeth are actually different kind of teeth because of their different functions. तो हमारे मुंह में कुल 32 दांत होते हैं और इन 32 दांतों को हम अलग अलग तरीके के दांतों में बांट सकते हैं. तो 4 प्रकार के दांत हमने पढ़े थे, आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद होगा. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. तो ये जो दांत होते हैं इनके अलग अलग काम होते हैं. इन चारों प्रकार के दांतों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. Now after that, after eating, tongue and teeth should be clean. So you learned that thing too, that after eating anything we should clean our tongue and teeth. तो बच्चों हमने देखा था कि डॉक्टर अंकर ने कहा अपने दांतों का ध्यान रखने के लिए कुछ भी खाने के बाद हमें अपने मुंह को धोना चाहिए, दांतों को भी साफ करना चाहिए. Then the next thing, tongue helps us in identifying taste and in speaking. So we learned that thing that tongue is also very helpful for us. तो जो जीभ है वो क्या करती है, वो हमको स्वाद को पता लगाने में मदद करती है और जब हम बोलते हैं तो कुछ भी बोलने के लिए भी हमारी जीभ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है. Now students, after this there are some questions linked to this chapter and we are going to practice these questions here. Question number 1 is, what should we do to protect our teeth? तो बच्चों पहला प्रश्न है कि हमें अपने दांतों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए. So answer is, to protect our teeth we should brush our teeth 2 times. After having food we should clean our teeth and tongue and rinse our mouth. If any problem occurs in teeth or gums, we should immediately visit a dentist. तो सिंपल बच्चों हमने ये चीज़ चैप्टर में देखी थी कि हमको अपने दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए. कब कब करना चाहिए है? इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले. और क्या करना चाहिए कि हम जैसे ही खाना खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो हमें अपने दांतों को, हमारे मुंह को अच्छे से धो लेना चाहिए. उसके अलावा क्या देखा हमने कि हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए किसी भी कारण से हमारे दांतों में कोई भी समस्या अगर होती है, कोई भी दर्द होता है, कुछ और दिक्कत होती है तो हमें जल्दी ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. Then the second question is, how do tongue and teeth help each other? So an interesting question it is कि प्रश्न ये है कि जो हमारे दांत हैं और जीभ हैं वो एक दूसरे की सहायता कैसे करते, कैसे मिलजुल करके काम करते हैं. So the answer is, the tongue strikes the teeth or the root of the mouth as some sounds are made. So while we speak, when some sounds are made, it happens the tongue strikes the teeth or the roof of the mouth. Now when we eat, our teeth tear, cut and grind food in preparation for swallowing. So this is the function of tongue, that they cut or grind the food which we are to swallow. The tongue helps
push food to the teeth and allow us to taste the food we eat. तो बच्चों ये दोनों मिलजुल करके सारे काम करते हैं. कुछ चीज़ों में टंग हेल्प करती है टीथ की, कुछ चीज़ों में टीथ हेल्प करते हैं टंग की. जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है वो हमारे दांतों को टच होती है, या माउथ के रूफ जो है यानी पैलेट जो है वहाँ टच होती है और हमारे साउंड्स निकलते हैं, आवाज़ निकलती है. उसके अलावा जब हम खाते हैं तो हमारे जो टीथ हैं वो फूड को काटते हैं, उसको चबाते हैं और तैयार करते हैं. और इस सारी प्रक्रिया में खाने को जो स्वेलो करने लायक यानी निगलने लायक बनाने की प्रक्रिया में टीथ और टंग दोनों हेल्पफुल होते हैं. ना आफ्टर दैट जो टंग होती है वो हमारे टीथ से आगे ले जाती है फूड को, तो वो स्वेलो करने में या आपके फूड को निगलने में, उसको आगे पुश करने में हेल्प करती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ tongue. So here we are going to see the importance of tongue, यानी जो हमारी जीभ है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्व है. So the answer is the tongue is vital for chewing and swallowing food as well as for speech. यानी हमारी जो जीभ है वो बहुत ज़रूरी है, वाइटल है. किसके लिए? खाने को चबाने के दौरान और फिर उसको निगलने के लिए, और इसके अलावा स्पीच के लिए यानी हमारी भाषा को बोलने के लिए भी टंग बहुत ज़रूरी होती है. द 4 कॉमन टेस्ट आर स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी, एंड दीज आर एक्चुअली possible. We are able to taste these tastes because of the tongue. The tongue has many nerves that help detect and transmit taste signal to the brain. तो हमारी जीभ ही है जिस पर टेस्ट बर्ड होती हैं, जिस पर ऐसी कलिकाएं होती हैं, ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारी टंग पर होती हैं और टेस्ट की पहचान के लिए हमारे ब्रेन तक यानी हमारे मस्तिष्क तक संकेतों को पहुंचाती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फंक्शन ऑफ टंग एंड हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर 13. सो आई होप यू लव दिस चैप्टर एंड वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग EVS in our next video with next chapter, that is chapter 14. Till then, thank you for watching.